A very good morning to all of you, bache. If any doubt is there from yesterday, you can ask. Otherwise, we will continue with exercise 8.4, question number 5, part 1. So I guess no doubts are there. So I'm continuing with the next question. Next question we have cosec. Prove the following identities where the angle involves are acute angles for which the expressions are defined. हमें फर्स्ट जो इसमें गिवन है दैट इज cosec थीटा माइनस थीटा होल स्क्वायर. cosec theta minus cot theta whole square, and we are to prove that this is equal to 1 minus theta upon 1 plus cos theta. जब इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे आपके पास तो आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को ऑब्जर्व करो केयरफुली. अगर आप इनको ऑब्जर्व करते हो तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो मेरी टर्म्स हैं दैट आर इन टर्म्स ऑफ cosec एंड cot. जो मुझे प्रूव करना है दैट इज इन टर्म्स ऑफ cos. स्क्वायर है यहाँ पूरी होल का स्क्वायर है, तो इधर जो मेरी नंबर ऑफ टर्म्स बनेगी वो ज्यादा बनेगी. हम हमेशा जिस साइड पे नंबर ऑफ टर्म्स ज्यादा होती हैं उससे दूसरी साइड को फॉलो करते हैं. So we will take left hand side cosec theta minus cot theta whole square. अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, cos और cosec और cot को sin cos की टर्म्स में, क्योंकि जो मुझे प्रूव करना है अकॉर्डिंग टू दैट मुझे उसको cos की टर्म्स में लेकर आना है, तो मैं इसको cos की टर्म्स में ही करूंगी. सो व्हाट आई विल हैविंग cosec theta मुझे पता है दैट इज 1 अपॉन sin theta and cot theta is cos upon sin. साइड पे आप लिख देंगे यहाँ पे this is cos upon sin. And the next step, denominators same है, LCM ले लेंगे. अब हमें स्क्वायर को रिमूव करना है, so what we will do, स्क्वायर को हम हटा, तो ये टर्म्स का हमने स्क्वायर कर दिया. अब मुझे साइन भी नहीं चाहिए बिकॉज व्हाट आई हैव टू प्रूव दैट इज इन टर्म्स ऑफ cos थीटा, तो मैं साइन को रिमूव करूंगी. साइन रिमूव करने के लिए I will change this using the identity sin square theta plus cos square theta equal to 1. So sin square theta is equal to 1 minus cos square theta. Now see this carefully. Here I am having 1 minus cos theta whole square, and here I am having 1 minus cos square theta. Both of these terms are different. इनको आप direct cancel out नहीं कर सकते. यहाँ पे ये whole का square है, यहाँ पे सिर्फ cos का square. If I see the denominator, so I can see clearly that it is in the form of a square minus b square. So I will change it to a minus b into a plus b. 1 minus cos theta whole square can be rewritten as 1 minus cos theta into 1 minus cos theta. If the bases are same, they are getting multiplied, then the powers are added. तो इसको मैंने रिवर्स ऑर्डर में लिख लिया, 1 minus cos theta into 1 minus cos theta. Or in other words, we can say that I have written this a square as a into a. अब 1 minus cos theta वाली टर्म्स आपकी कैंसिल आउट हो जाएंगी. What we are left with 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta, which is our right hand side. So see the question again. हमें यहाँ पे given था cosec theta minus cot theta whole square, और इसको हमने प्रूव करना था 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta. हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड ले ली cosec theta minus cot theta whole square, इनकी कन्वर्जन की sin cos की टर्म्स में, देन LCM लिया, स्क्वायर खोला,
साइन स्क्वायर, क्योंकि मुझे सिर्फ कॉस की टर्म्स में आंसर चाहिए था, तो मैंने साइन को भी कन्वर्ट कर दिया, कॉस की टर्म्स में लिख दिया। देन यहाँ पे ए स्क्वायर को रीराइट किया a इंटू ए, तो दिस इज 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। डिनोमिनेटर में आई हैव अप्लाइड द concept of a square minus b square equal to a minus b into a plus b. So this is 1 minus cos theta into 1 plus cos theta. 1 minus cos theta numerator and denominator में से आपका cancel out हो गया. We are left with this. So this was the question number 5 part 1. Now moving on to question number 5 part 2. Now again we are having cos a upon 1 plus sin a plus 1 plus sin a upon cos a is equal to 2 secant a. So the number of terms is more on the left hand side. So we will go with the left hand side and use that to be equal to the right hand side. So this is your question number 5 part 2. We are having sin cos a upon 1 plus sin a plus 1 plus sin a upon cos a. This is equal to secant e. अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और एलसीएम ले लेंगे. LCM you can see clearly that both of these terms are different, having no common factor. So इनका product आ जाएगा as LCM. ब्रैकेट ओपन नहीं करके दिखाएंगे, आप इसको as it is लेंगे. और यहाँ क्योंकि both of these are co-primes, कोई common factor नहीं था, तो cos a से multiply हो जाएगा, 1 plus sin a 1 plus sin a. Cos a multiplied by cos a will give you cos square a. 1 plus sin a multiplied by 1 plus sin a will give you 1 plus sin a whole square. अब यहाँ पे आप ब्रैकेट ओपन कर दोगे, डिनोमिनेटर हम एज इट इज लिखते जाएंगे, क्योंकि सीकेंट ए मींस डिनोमिनेटर में मेरे पास cos a आएगा, मैं इसलिए मल्टीप्लाई नहीं. सो हियर आई एम हैविंग cos square a प्लस यहाँ पे a प्लस b होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. So this is a square is 1, b square is sin square a, and 2 into 1 into sin a is 2 sin a upon में 1 plus sin a into cos a. Here I am having 2c. Now cos square a plus cos sin square a, that is 1. तो मैंने इनको इकट्ठा लिख दिया, रीराइट कर लिया मैंने टर्म्स को. अब cos square a plus sin square a को मैं 1 से रिप्लेस कर दूंगी. देन 1 plus 1 आपका 2 आ जाएगा, 2 कॉमन लेके आपकी जो टर्म्स हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगी. यहाँ पे मैंने आइडेंटिटी ये यूज की थी, तो आई हैव रिटन दिस. अब 2 plus 2 sin a अपॉन 1 plus sin a into cos a. 2 आपका न्यूमरेटर में से कॉमन आ जाएगा, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 plus sin a आपका सेम है, दैट विल गेट कैंसल्ड एंड वी आर लेफ्ट विथ 2 upon cos a. 2 upon cos a can be rewritten as 2 secant a, which is the right hand side. So हमने again लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर ऑफ टर्म्स ज्यादा थी, उसको सिंप्लीफाई करके वी हैव प्रूव्ड दिस टू बी इक्वल टू RHS. हमने फर्स्ट स्टेप में क्या किया, दोनों का LCM लिया. 1 plus sin a cos a कुछ कॉमन नहीं है दोनों में, तो दोनों का प्रोडक्ट आ गया. न्यूमरेटर में क्रॉस में मल्टीप्लाई करके लिख दिया, तो दिस इज cos square a plus 1 plus sin square sin a whole square. यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया. कॉस और साइन वाली टर्म्स स्क्वायर में थी, दोनों को इकट्ठा विद सेम एंगल था, तो दोनों को हमने इकट्ठा लिखा. ये प्लस 1 मैंने पीछे लिखा, ये 2 sin a एज इट इज, डिनोमिनेटर एज इट इज cos square a plus sin square a. इसको रिप्लेस कर दिया 1 से, फिर प्लस 1 plus 2 sin a एज इट इज. 1 plus 1 is 2. यहाँ से आपने 2 कॉमन लिया, तो 2 कॉमन लेके यहाँ 1 रह गया, प्लस का साइन एज इट इज. 2 sin a में से 2 कॉमन लिया, तो sin a रह गया. 1 plus sin a 1 plus sin a ये आपका कैंसिल आउट हो गया. We are left with 2 upon cos a. 1 by cos is secant, so your answer is 2 secant a. So this was your question number 5 part 2. Now moving on to part 3. अब part 3 में हमें जो है
गिवन है tan थीटा प्लस 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस secant थीटा प्लस cosec थीटा। दिस इज योर होमवर्क पार्ट, मार्क कर लो इसको। दिस इज योर होमवर्क पार्ट, क्योंकि इसमें आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले जो आपको गिवन एक्सप्रेशन है, अगर आप उसको देखो तो tan और cot की टर्म्स में गिवन है और उधर secant और cosec की टर्म्स में गिवन है। तो हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को साइन और कॉस की टर्म्स में रीराइट कर लेना है, देन एलसीएम ले लेना है, और एलसीएम लेके जब आप उसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास जो है आंसर 1 प्लस 1 अपॉन साइन थीटा एंड कॉस थीटा आएगा। तो यू कैन रीराइट दैट इन द फॉर्म ऑफ सीकेंट थीटा एंड कॉसेक थीटा, तो यू विल गेट योर आंसर। पहले साइन कॉस की टर्म्स में लिखोगे, देन एलसीएम लेके आप उसको सिंप्लीफाई करोगे। सो थर्ड पार्ट इज योर होमवर्क एंड फोर्थ इज ऑल्सो योर होमवर्क। फोर्थ में आप जो है लेफ्ट हैंड साइड अलग से सिंप्लीफाई करना, राइट हैंड साइड अलग से सिंप्लीफाई करना, दोनों साइड्स आप इक्वल शो कर दोगे। अदरवाइज लेफ्ट हैंड साइड से आप राइट हैंड साइड भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। आप लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड अलग अलग सिंप्लीफाई करना, मैं उसी से कैसे सिंप्लीफिकेशन होती है आई एम जस्ट टेलिंग दैट। बट वो क्या होता है कि कई बार आपके माइंड में स्ट्राइक नहीं करता, तो आप इस तरह से भी शो कर सकते हो। यहाँ जैसे मुझे गिवन है 1 प्लस सीकेंट ए अपॉन ए, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 4। 1 प्लस सीकेंट ए अपॉन सीकेंट ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। आप इनको अलग अलग खुद शो करोगे, मैं लेफ्ट हैंड साइड से ही कैसे राइट हैंड साइड बन रही है वो शो कर रही हूँ। तो जो आप मुझे होमवर्क पार्ट से सेंड करोगे उसमें आप एलएचएस और आरएचएस को दोनों को सॉल्व करके इक्वल शो करके, दैट इज योर होमवर्क पार्ट। यहाँ पे मैं इसको ले रही हूँ, यहाँ पे वी आर हैविंग सेकेंड। अब मैं आपको करवा रही हूँ लेफ्ट हैंड साइड से, आई एम हैविंग 1 प्लस सेकेंड ए अपॉन सेकेंड ए। साइन कॉस के टर्म्स में आंसर चाहिए, कन्वर्ट कर लेंगे। 1 प्लस 1 बाय कॉस ए अपॉन 1 बाय कॉस ए, so this is 1 plus cos a या cos a plus 1 rather we can say। एलसीएम ले लिया हमने न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का जो डिनोमिनेटर है दैट इज सेम, मैंने कैंसिल आउट कर दिया। आई एम लेफ्ट विद 1 प्लस cos a। एडिशन कॉम्यूटेटिव है तो cos a plus 1 को मैंने 1 प्लस cos a लिख लिया। दोबारा देखो यहाँ तक, लेफ्ट हैंड साइड मुझे गिवन थी 1 प्लस सीकेंट ए अपॉन सीकेंट ए। सीकेंट ए को मुझे पता है दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos ए, तो मैंने सीकेंट ए को रिप्लेस कर दिया इन दोनों को 1 बाय cos ए। न्यूमरेटर में मैंने एलसीएम लिया, इसके नीचे कुछ नहीं है मींस 1 है, तो cos a प्लस 1 बाय cos a ये मेरा न्यूमरेटर बन गया। डिनोमिनेटर 1 बाय cos a एज इट इज। न्यूमरेटर का अगर मैं डिनोमिनेटर देखूं दैट इज cos a, डिनोमिनेटर का अगर मैं डिनोमिनेटर देखूं दैट इज अगेन cos a, तो ये दोनों मैंने कैंसिल आउट कर दिए। मेरे पास क्या रह गया, cos a plus 1 which can be rewritten as 1 plus cos a। If I see the right hand side, राइट हैंड साइड में मुझे डिनोमिनेटर में 1 माइनस cos a चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस cos a। अब क्या होता है कि जब आप एग्जाम में होते हो, अगेन ड्यू टू मेंटल प्रेशर हमें ये वाला स्टेप जो है वो नहीं स्ट्राइक करता माइंड में कि हमने इस तरीके से करना है। तो व्हाट यू कैन डू, आप इसको यहाँ पे छोड़ दें। उसके बाद आप आरएचएस उठाना, आरएचएस को आप सिंप्लीफाई करोगे, साइन स्क्वायर ए को कॉस की टर्म्स में कन्वर्ट करके, अगेन यू विल गेट 1 प्लस कॉस। तो आप लास्ट में लिख दोगे सिंस एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस हेंस ट्रू। अगर स्ट्राइक कर जाता है यहाँ से पता लग जाएगा, राइट। जब हम ये सिंप्लीफिकेशन करते हैं एक नजर आपने इस पे भी रखनी है कि मैं जो प्रूव कर रहा हूँ या कर रही हूँ इज दैट करेक्ट और नॉट। यहाँ मुझे अपॉन में 1 माइनस कॉस ही चाहिए, यहाँ मेरे पास डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर 1 माइनस कॉस से लाने के लिए डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर दिया 1 माइनस कॉस ए। तो 1 माइनस कॉस ए अपॉन में भी 1 माइनस कॉस ए आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर तो ये मुझे मिल गया, न्यूमरेटर साइन की टर्म्स में चाहिए, इनको मल्टीप्लाई कर दो। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए यूजिंग आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दिस इज साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस ए विच इज योर
आर एच। अगर तो ये वाला स्टेप आपके माइंड में स्ट्राइक कर जाता है तो लेफ्ट हैंड साइड हमने आर एच एस के इक्वल शो कर दिया। कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है, मान लो आपसे ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है इस तरीके से सिंप्लीफाई नहीं होती, लेफ्ट हैंड साइड से आप राइट हैंड साइड डिराइव नहीं कर रहे, तो व्हाट यू आर टू डू, आपने लेफ्ट हैंड साइड जितनी मैक्सिमम सिंप्लीफाई कर सकते हो कर लेनी है। उसके बाद राइट हैंड साइड उठानी है, राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करना, दोनों जहां पे इक्वल आ गए लास्ट में आप लिख दो सिंस LHS इज इक्वल टू RHS हेंस प्रूफ। तो जरूरी नहीं है कि आप इसी से ये चीज डिराइव करो, नहीं माइंड में स्ट्राइक करता, आधा इसका कर दो, जितना मैक्सिमम सिंप्लीफाई कर सकते हो करो, और उसके बाद RHS को सिंप्लीफाई करो। तो एक स्टेप आपका ऐसा आएगा जहां ये आंसर आपका सेम बन रहा होगा RHS के, तो दैट विल बी योर एंड पॉइंट ऑफ द क्वेश्चन। नाउ मूविंग ऑन टू द फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट जो है, जैसे मैंने कल आपको एग्जाम्पल करवाया था, इट्स सिमिलर टू दैट, ये ध्यान से करना, बिकॉज ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल लगता है बच्चों को, बट है इम्पोर्टेंट। कल मैंने एग्जाम्पल 15 करवाया था, बिल्कुल उसी तरीके से है। देखो, cos a माइनस साइन ए प्लस 1, और डिनोमिनेटर में है हमारे पास cos a प्लस साइन ए माइनस 1, और मुझे इसको प्रूफ करना है इक्वल टू cosec a प्लस cot a using the identity cosec square a equal to 1 प्लस cot स्क्वायर a। अब यहाँ ध्यान दें, क्योंकि मुझे जो आइडेंटिटी यूज करनी है वो ये है, cosec स्क्वायर a इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर a। तो क्योंकि मुझे ये वाली आइडेंटिटी यूज करनी है, सो व्हाट आई हैव टू डू कि मुझे इसको cosec और cot की टर्म्स में लिखना पड़ेगा। अब cos a है, यहाँ पे साइन ए है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे cos ए है, साइन ए है, 1 है, तीन टर्म्स हैं, ऊपर नीचे सेम है विद डिफरेंट साइंस हैं इन बिटवीन। तो मेथड हमारा वही लगेगा जो हम कल लगा रहे थे। तो इसमें हमने सबसे पहले क्या करना है, इनको cosec और cot की टर्म्स में लिखना है। cosec और cot की टर्म्स में लिखने के लिए हमें पता है cot जो है दैट इज cos अपॉन साइन, और cosec जो है दैट इज 1 अपॉन साइन। तो हम क्या करेंगे, divide and multiply the numerator, divide and multiply by sin a, या आप ऐसे भी लिख सकते हो डिवाइडिंग बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। मैंने लिख दिया डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय साइन ए। डिवाइड एंड मल्टीप्लाई यहाँ किस सेंस में हो रहा है, डिवाइड ही कर रहे हैं हम, डिवाइड बोथ न्यूमरेटर, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है यहाँ पे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। सो वी विल बी हैविंग, हर टर्म को हमने क्या करना है, साइन ए से डिवाइड। ये न्यूमरेटर है, सेम वे में आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करना है। डिनोमिनेटर वाली टर्म्स लिख ली मैंने पहले, cos a प्लस साइन ए माइनस 1। उसके बाद हर टर्म को किससे डिवाइड कर रहे हैं, साइन ए। मल्टीप्लाई इसीलिए मैंने हटा दिया क्योंकि दोनों में डिवीजन हो गया। तो डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। अब इनको हमें पता है cos अपॉन साइन दैट इज cot, 1 अपॉन साइन इज cosec, साइन अपॉन साइन आपका 1 मिल जाएगा। तो इसको अगेन मैंने रीराइट कर लिया, दिस इज cot a माइनस 1 प्लस cosec a अपॉन cot a प्लस 1 माइनस cosec a। अब कल मैंने आपको बताया था जो हमें आइडेंटिटी गिवन होती है, ये दो टर्म्स आपकी वही बनती हैं, 1 को हम इस वाली आइडेंटिटी से रिप्लेस कर देते हैं। तो पहले मैं टर्म्स को रीराइट कर लूंगी, 1 को मैं अलग लिख लूंगी। अब यहाँ ध्यान रखना है कि 1 जब मैं पीछे लेके जा रही हूँ तो 1 के आगे साइन माइनस है, वो माइनस का साइन भी पीछे जाएगा, वो कॉसेक के साथ नहीं लगाना आपने। कॉसेक मेरे पास पॉजिटिव है तो कॉसेक पॉजिटिव ही लिखना, और अपॉन में कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक बी। नीचे मैंने नहीं चेंज किया, आप चाहो तो आप नीचे डिनोमिनेटर में भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आपने कंसेप्ट लगा दिया कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा, एंड कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन।
अब यहाँ पे इस 1 को मुझे रिप्लेस करना है बाय cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए। cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, तो इसको मुझे रिप्लेस करना। सो यहाँ आ जाएगा cot ए प्लस cosec ए, ये इकट्ठा ले लिया मैंने, माइनस 1 को ये रिप्लेस कर देंगे cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए। इसको 1 ले लो, यहाँ पे लिख दो यूजिंग 1। डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं करना हमने। सो यहाँ तक एक बार दोबारा स्टेप्स देख लो। ये स्टेटमेंट मुझे गिवन थी, ये आइडेंटिटी मुझे यूज करनी थी। आइडेंटिटी में मेरे पास टी रेशियोज कौन कौन से हैं, कॉसेक एंड कॉट। तो जो मुझे गिवन स्टेटमेंट थी, पहले मैं उसको कॉसेक और कॉट की टर्म्स में लिखूंगी। तो मैंने हर टर्म को क्या किया, साइन ए से डिवाइड कर दिया। साइन ए से डिवाइड करने पे कॉस बाय साइन, ये दोनों टर्म्स कॉट की टर्म्स में आ गई। साइन बाय साइन ए इज 1 एंड 1 बाय साइन ए इज कॉसेक ए। जिसके आगे जो साइन था वो एज इट इज लगा दिया। अब हमने क्या करना है, 1 को हम पीछे ले जाएंगे, कॉसेक ए को आगे ले आएंगे। इनकी पोजीशंस दोनों की इंटरचेंज कर दी, तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 अपॉन में एज इट इज। अब इस 1 को जो आइडेंटिटी यूज करनी है हमने उस आइडेंटिटी से रिप्लेस कर दिया, ये आ गया। देन यहाँ पे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। कल भी यही सेम स्टेप्स हमने किए थे। ये माइनस का साइन, यहाँ आइडेंटिटी यूज करेंगे, cosec ए प्लस cot ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फिर से डिनोमिनेटर एज इट इज चलता जाएगा। डिनोमिनेटर में हमने कोई किसी तरह का चेंज नहीं करना है। यहाँ पे आप मेंशन कर देना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब देखिए कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए दोनों यहाँ है, तो ये मैंने बाहर। अब जब ये पूरा बाहर चला गया, ठीक है, इसकी जगह क्या रह गया, 1। ये माइनस का साइन एज इट इज, ये पूरा बाहर चला गया, इसकी जगह क्या रह गया, कॉसेक ए माइनस कॉट ए अपॉन में कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब यहाँ ये एज इट इज कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और यहाँ ब्रैकेट खोल लो, 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए। डिनोमिनेटर में भी यही चीज है, देखो कॉट ए पॉजिटिव है, 1 पॉजिटिव है और कॉसेक नेगेटिव। तो इट मीन्स ये तीनों की तीनों टर्म्स आपकी पूरी की पूरी ब्रैकेट कैंसिल आउट हो गई। व्हाट वी आर लेफ्ट विद कॉट ए प्लस कॉसेक ए। यही चीज मुझे प्रूव करनी थी। ए आपको पता है एडिशन कॉम्यूटेटिव है, तो ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। कॉसेक ए पॉजिटिव, कॉट ए पॉजिटिव, कॉसेक ए पॉजिटिव, कॉट ए पॉजिटिव। सो दिस इज योर आंसर। तो बिल्कुल सेम मेथड जैसे हमने कल एग्जाम्पल में अप्लाई किया था, सेम वही किया। पहले हमने इसको जो आइडेंटिटी प्रूव करनी है उस टर्म में, यानी कि कॉसेक और कॉट की टर्म्स में लिख लिया। फिर 1 को पीछे लेके आए, 1 को गिवन आइडेंटिटी से रिप्लेस किया, कंसेप्ट लगाया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। फिर जो कॉमन वाली टर्म थी वो बाहर लेके, ये जो डिनोमिनेटर है सेम ब्रैकेट आपकी न्यूमिनेटर में बनेगी, ये कैंसिल आउट करके यू विल गेट योर आंसर। So this was your question number 5, part 5. This is an important question. So this you will do in your homework part. आप इसको homework part में करोगे क्योंकि ये important है। After this, moving on to question number 5, part 6. Question number 5, part 6 में मुझे given है √1 plus sin a upon √1 minus sin a, और prove करना है इसको secant a plus tan a equal। जब भी रूट में मुझे टर्म्स गिवन होती हैं तो हम क्या करते हैं, वहां पे उसको रैशनलाइज कर लेते हैं। 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन, लेफ्ट हैंड साइड में ले रही हूँ, इक्वल टू RHS। आपको इसको प्रूव करना है सीकेंट ए प्लस टैन ए। तो मैंने क्या किया, इसको मैं रैशनलाइज कर लूंगी। 1 प्लस साइन ए से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, रूट के नीचे ही होगा ये ध्यान। तो ये मेरा बन जाएगा
1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, सेम टर्म्स सेम बेसिस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स ऐड हो गई, तो ये पावर 2 है तो इसको ऊपर करके लिख दिया मैंने, अपॉन में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब इनको मैं अलग अलग रूट के नीचे लिख लूंगी। 1 minus sine square a can be written as cos square a because sine square theta plus cos square theta is equal to 1, तो यहाँ से cos square theta आ जाएगा 1 minus sine square theta। अब देखो ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल आउट हो गया, बट आई एम हैविंग 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, इसको मैं रीराइट कर लूंगी 1 प्लस कॉस ए प्लस साइन ए बाय कॉस ए, 1 plus cos A is 1 upon cos A is secant A, and this is tan A, and this is the arch। तो सिंपली हमने क्या किया, हमने यहाँ पे रैशनलाइज किया इसको, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए था जो मुझे प्रूव करना है, क्योंकि उसमें रूट वाला साइन नहीं था, तो मैंने यहाँ रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर किया, डिनोमिनेटर में 1 माइनस था तो 1 प्लस से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर में मेरे पास 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर बन गया, यहाँ पे 1 माइनस साइन ए होल स्क्वायर बन गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बन गया, तो 1 प्लस इनके रूट्स अलग अलग, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को आपने रिप्लेस कर दिया कॉस स्क्वायर ए से, रूट्स और स्क्वायर्स कैंसिल आउट होके 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, यहाँ पे दोनों टर्म्स को अलग अलग लिखा एंड वी विल गेट आवर आंसर। नाउ आफ्टर दिस सेवेंथ पार्ट में मुझे गिवन है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करना है, मुझे इसको इक्वल टू प्रूव करना है टैन थीटा। दिस इज अगेन योर होमवर्क पार्ट, मैं हिंट दे देती हूँ आपको। न्यूमरेटर में से आप साइन थीटा कॉमन ले लोगे तो आपके पास क्या बचेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, फिर डिनोमिनेटर में से आप कॉस थीटा कॉमन ले लोगे तो आपके पास बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये वाले साइन स्क्वायर थीटा और ये वाले कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों में से किसी एक को दूसरे की टर्म्स में लिख लो, चाहे तो आप साइन को कॉस की टर्म्स में लिख लो, चाहे आप कॉस को साइन की टर्म्स में लिख लो, देन आपका ये वाला ब्रैकेट जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा एंड दिस वी आर लेफ्ट विद tan थीटा। तो दिस क्वेश्चन यू विल डू योरसेल्फ। फर्स्ट स्टेप में न्यूमरेटर में साइन थीटा कॉमन लेना है, डिनोमिनेटर में कॉस थीटा कॉमन लेना है, उसके बाद 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा में साइन स्क्वायर थीटा को चाहे आप कॉस की टर्म्स में लिख लो, ऊपर वाली ब्रैकेट नीचे वाली ब्रैकेट दोनों सेम होके कैंसिल आउट हो जाएंगी, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा विल गिव मी माय राइट हैंड साइड दैट इज tan थीटा। So this is again your homework part. Now moving on to the eighth part. Eighth part कौन सा है, देखो हमारा sin a plus cosec a whole square plus cos a plus secant a whole square is equal to 7 tan square a plus cot square a। अब इस क्वेश्चन में आपका हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे और उसको इक्वल टू RHS हम, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपका बोर्ड में आया भी है काफी बार। So this is sin A plus cosec A whole square plus cos A plus secant A whole square is equal to 7 plus tan square A plus cot square A। ये चीज हमें प्रूव करनी है। अब देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, राइट हैंड साइड लेंगे, इसको राइट हैंड नहीं सेकंड टर्म लेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में हमने इन दोनों को क्या करना है, सिंप्लीफाई। LHS ले लिया मैंने, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन और कॉसेक क्योंकि एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं तो ये दिस विल गेट कैंसल्ड, और इधर आ गया cos स्क्वायर a प्लस secant स्क्वायर a प्लस 2 cos a। अगेन ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल। अब इनको हम रीराइट कर देंगे, साइन स्क्वायर a और cos स्क्वायर a को इकट्ठा ले लो, 2 cos स्क्वायर a प्लस 2 sin स्क्वायर a प्लस 2 cos स्क्वायर a। 2 cos स्क्वायर a प्लस 2 sin स्क्वायर a प्लस 2 cos स्क्वायर a, 2 sin स्क्वायर a प्लस 2 cos स्क्वायर a प्लस 2 sin स्क्वायर a प्लस 2 cos स्क्वायर a प्लस 2 sin स्क्वायर a प्लस 2 cos स्क्वायर a प्लस 2 sin स्क्वायर a प्लस 2 cos स्क्वायर a प्लस 2 sin स्क्वायर a प्लस 2 cos स्क्वायर a प्लस 2 sin स्क्वायर a प्लस 2 cos स्क्वायर a प्लस 2 sin स्क्वायर a प्लस 2 cos स्क्वायर a प्लस 2 sin स्क्वायर a प्लस 2 cos स्क्वायर a प्लस 2 sin स्क्वायर a प्लस 2 cos स्क्वायर a प्लस 2 sin स्क्वायर a प्लस 2 cos स्क्वायर a प्लस 2 sin स्क्वायर a प्लस 2 cos स्क्वायर a प्लस 2
plus cosec square a plus secant square a, ये दोनों कैंसल आउट होके क्या रह गया मेरे पास 2 and 2. क्यों? क्योंकि साइन a is 1 by cosec a and cos a is 1 by secant a. मैंने एक स्टेप स्किप कर दिया बीच में, तो आप इसको कर लें. साइन ए कॉसेक ए को आप रिप्लेस कर दोगे 1 बाय साइन ए से, तो साइन ए और अपॉन साइन ए कैंसिल आउट होके 2 रह जाएगा. यहाँ पे भी कॉस ए को आप रिप्लेस कर देना 1 बाय सीकेंट ए से, तो सीकेंट ए एंड 1 बाय सीकेंट ए कैंसिल होके 2 रह जाएगा. तो ये आ गया 2 + 2. अब इनको सिंप्लीफाई करो. ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, दिस इज 1. मुझे जो आंसर चाहिए वो tan स्क्वायर और cot स्क्वायर की टर्म्स में चाहिए. तो cosec स्क्वायर और secant स्क्वायर को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा. cosec को मैं cot की टर्म्स में कन्वर्ट करूंगी, secant को मैं tan की टर्म्स में कन्वर्ट. इसकी जगह मैंने 1 लिख दिया. cosec को मैं रिप्लेस कर रही हूँ 1 + cot स्क्वायर a से. secant को मैं रिप्लेस करूंगी 1 + cosec 1 + tan स्क्वायर a. और ये 2 + 2 ऐसे. यहाँ पे हम लिखेंगे secant square theta is equal to 1 + tan square theta and cot square cosec square theta is equal to 1 + cot square. अब सिंप्लीफाई कर लो. 2 2 1 1 and this 1. 7 plus cot square a plus tan square a, which is RH. So this is your solution. दोबारा देखो इसको. लेफ्ट हैंड साइड हमने ली, यहाँ पे a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोला, यहाँ पे भी a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोला. साइन a और cosec a क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो these will cancel out and give you 1. तो 2 × 1 is 2. यहाँ पे भी cos and secant are reciprocal of each other, तो 2 × 1 is 2. ये इन दोनों से 2 और 2 आ गया. cos स्क्वायर a और sin स्क्वायर a को इकट्ठा लिख दिया. cosec स्क्वायर a secant स्क्वायर a as it is. तो ये हमारे पास टर्म्स बन गई. साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 1. मैंने यहाँ पे 1 से रिप्लेस कर दिया क्योंकि मुझे आंसर में tan स्क्वायर और cot स्क्वायर की टर्म्स में चाहिए. तो cosec स्क्वायर को मैंने 1 + cot स्क्वायर थीटा लिख लिया. secant स्क्वायर को मैंने 1 + tan स्क्वायर थीटा लिख लिया. ये 2 + 2 as it is. ये 3 1s हैं, 2 2s हैं, तो that will give you 7. और cot स्क्वायर a tan स्क्वायर a as it is, and this is your RH. 9th part. cosec a minus sin a into secant a minus cos a is equal to 1/tan a plus cot a. तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड में जो है cosec और secant इनको 1/sin और 1/cos की फॉर्म में लिख लेंगे. देन इनको मल्टीप्लाई करके जितना मैक्सिमम सिंप्लीफाई कर सकते हैं कर लेंगे. फिर हम राइट हैंड साइड पे आएंगे, tan और cot को sin cos की टर्म्स में कन्वर्ट करके फिर आप सिंप्लीफाई कर लोगे, तो दोनों आप साइड और राइट हैंड साइड दोनों जो है वो sin a cos a के इक्वल आ जाएंगी. तो दैट विल बी योर सॉल्यूशन. तो इस पार्ट को आप ट्राई कर लेना. इन केस इफ यू विल बी अनेबल टू डू, तो आई विल डिस्कस टुमारो. आज के होमवर्क पार्ट सुन लो आपके कौन कौन से हैं. क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3, because as the time is just 1 minute left, so I'm not going for the next question. Exercise 8.4 में 5th का 3rd part, 4th part, 5th part, then 7th part and 9th part, this you are to try. इनमें से जो भी आपके पार्ट्स नहीं होंगे, that I will explain tomorrow. So these 5 parts are your homework parts. Question number 5, part 3, 4, 5, 7 and 9. Otherwise जो नहीं हुए that we will discuss tomorrow, and tomorrow again we will start with exercise 8.3. उसके पहले मैं आपको important concepts समझाऊंगी and then we will start with that exercise. So if any doubt is there, I'm giving you the option to unmute. You can unmute yourself and ask your doubt. If any doubt is there, you can ask for. So I hope no one is having any doubt. So that's very good. Okay, then I am ending the meeting. You are to do the homework parts, and doubts I will take tomorrow. Thank you. Have a nice day.